Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study Sanskara various references or rituals various references. So let's start the lecture. See, Sanskaras are the religious activities for the purification of human life, but actually Sanskaras are the guiding principle of human life. You may consider that some of the Sanskaras have lost relevance at present time, but the objective of sanskara has relevance even today. Through these sanskaras we can have a systematic life. The sanskaras can be defined as religious activities of purification, right? So sanskaras can be defined as religious activities of purification and rituals performed for the intellectual, mental and Vedic sophistication of individual so that one can become a fully developed member of society. So in this way sanskaras can be defined. Again we can say that sanskara refers to the religious activities of purification and rituals performed for the intellectual, mental and Vedic sophistication of the individual so that one can become a fully developed member of the society. And sanskaras have twofold importance. On one hand, through sanskaras, or we can say that on one hand, sanskaras prepares the individuals to accept various personal and social roles appropriate to the time, and on the other hand sanskara also serves to integrate him with the society. In this way we can simply say that in order to achieve important goals, or we can say that four purusharthas, right? Dharma, artha, kam, moksha. So in order to achieve important goals of life, or we can say that four purusharthas, dharma, artha, kam or moksha, some special rituals have been developed on religious basis, and these are called samskaras, right? So if 3 marker question is asked, right, and if we have to write a note on sanskara, then we can have this definition, right? So in order to achieve the important goals or 4 purusharthas of life, some special rituals have been developed on religious basis, and these are called sanskaras, right? अब संस्कार की संख्या कितनी है, इसको लेकर जो है इन आर स्क्रिप्ट जो है अलग अलग हमारे बुक्स में जो है इनकी संख्या अलग अलग बताई गई है, राइट? बट जो 16 संस्कार हैं वो हमारे सोशल जो इंडियन कल्चर है उसमें इनको एक्सेप्ट किया गया। तो 16 संस्कारास और 16 सैक्रामेंट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन गृह सूत्रा of the Sutra Sahitya, right? So 16 sanskaras have been recognized and have been given importance, and these 16 sanskaras have been mentioned in Griha Sutra of Sutra Sahitya, right? Now we will see the meaning of sanskara. See, sanskara is a Sanskrit word, right? Sanskara is a Sanskrit word and it has been made up of some, right, and which is the prefix. So जो संस्कार शब्द है, इस संस्कार शब्द में जो सम है वो एक क्या है, प्रीफिक्स है, राइट? इसमें क्रू जो है वो क्या है, सफिक्स है, और ज्ञान जो क्या है, रूट वर्ड है। और मीनिंग ऑफ संस्कारा इज सोफेस्टिकेशन, प्योरिटी और प्योरिटी प्रोसेस. So simply we can say that the meaning of rituals or the word sanskara is sophistication, purity and purity process. The English translation of the word sanskara is ceremony or ceremonia, rite, ritual, right, and sacrament etc. But जो sacrament word है, it has been given importance because the meaning of sacrament is religious rituals or an act which is considered to be an external and visible symbol of mental and spiritual beauty. So this was the meaning of sanskara.
नाउ वी विल सी द डेफिनेशंस ऑफ संस्कारा, राइट। और ये जो डेफिनेशंस हैं ये एक तो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि व्हाट इज संस्कार। Second thing is that if we are going to write 11 marker question and 5 marker question, then we can quote these definitions. So definition of sanskara according to Rajbali Pandey, right? So according to Rajbali Pandey, sanskara refers to the religious activities of purification and rituals performed for the physical, inner and intellectual refinement of the individual, in which one may become a fully developed member of the society. So we have seen this definition earlier also. According to Jaimini Sutra, right? So according to Jaimini Sutra, the process of giving a thing a form by which it can be more useful is known as sanskara. Clear? According to Savar, according to Savar, sanskara is that by the performance of which a substance or a person becomes capable of any work, right? At last, Shiv Swarup Sahai. So according to Shiv Swarup Sahai, the process of purifying oneself in the field of attainment of the perfection of life is called as sanskara. So this is the definition of Swarup Sahai, right? And now we will study objective of sanskaras, right? And this may be asked as a 11 marker question. See, if 11 marker question is asked what are the objectives of sanskaras, then you need to write 7 or 8 points and you have to elaborate these 7 or 8 points. And if this question is asked as a 5 marker question, then simply you can write 7 to 8 points one by one. So now we will understand what are the objectives of sanskaras. The first is formation and development of personality. See, sanskaras are the guiding principle of life, and if we follow these guiding principles, then definitely we can have a developed personality, right? Actually, on which point of time और लाइफ की कौन सी स्टेजेस में व्हाट शुड बी डन, राइट, ये हमें संस्कार के माध्यम से पता चलता है, राइट। एंड इफ वी फॉलो दीज गाइडिंग प्रिंसिपल्स, यदि हम इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को we will keep in mind, right, and according to these guiding principles if we work, then definitely हमारा जो character है वो improve होगा according to society, right? So if we follow these guiding principles, then definitely we would have a developed personality and the personality would be according to our society. Second thing is that wanting the desired effects for the person. See, in Indian culture, in Indian culture, many god, goddess and deities are worshipped for wanting something, right? तो जो वर्शिप की जाती है वो इन्हीं संस्कारों के माध्यम से की जाती है, right? If you want something in your life, then through these sanskaras, right, through these sanskaras you can worship your deities, right, deities और गॉड, गॉडेस, और जो कुछ भी आपको चाहिए यू कैन हैव थ्रू दीज संस्कारास. थर्ड इज अचीविंग वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, राइट. तो थ्रू संस्कारास आप जो कुछ भी चाहते हैं, आपकी जो भी डिजायर है वो आप अचीव कर सकते हैं, राइट. और इसके साथ ही यू कैन अटेन प्रॉस्पेरिटी आल्सो, राइट. यू कैन अटेन हैप्पीनेस, राइट, वेल्थ, property, animal, long life, strength, intelligence through these various samskaras, right? I told you that ये जो संस्कारास हैं ये religious activities हैं, और साथ ही साथ इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो लाइफ की गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हमारी जो भी डिज़ायर है, जो कुछ भी प्रॉस्पेरिटी हम चाहते हैं, हम वो अटेन कर सकते हैं. Next is providing opportunities for the self-expression to the person, right? In modern world, on different occasion, you wish your friend, your family member, right,
फॉर एन एग्जाम्पल ऑन फेस्टिवल। क्यों? क्योंकि आप आपको एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपकी फीलिंग को जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वैसे ही जो संस्कार हैं ये लाइफ के डिफरेंट टाइम, या हम ये कहें कि डिफरेंट लाइफ जो स्टेजेस होती हैं उन पर ये जो संस्कार हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। प्रायर टू बर्थ से लेकर डेथ तक डिफरेंट जो है संस्कारास आर परफॉर्म्ड। तो इन संस्कारों के परफॉर्मेंस के माध्यम से ही टाइम टू टाइम जो है पर्सन एक्सपीरियंसेस हिज हैप्पीनेस, जॉय, सॉरो एंड रिचुअल्स, राइट। तो व्यक्ति की हैप्पीनेस, जॉय और सॉरो को एक्सपीरियंस करने के लिए जो डिफरेंट रिचुअल्स हैं और संस्कार हैं वो यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। और प्रायर टू बर्थ से लेकर डेथ तक कई प्रकार के जो है संस्कारास आर परफॉर्म्ड। फिफ्थ इज कल्चरल पर्पस। सी, हमारी इंडियन सोसाइटी में जो है, हमारी इंडियन सोसाइटी में ये माना गया है कि इफ आवर बॉडी इज प्योर, राइट, तो एक प्योर बॉडी में ही जो प्योर सोल है वो मतलब प्योर बॉडी में ही प्योर जो सोल है वो रह सकती है। इसीलिए हमारी बॉडी के प्योरिफिकेशन पर या हमारे आत्मा के शुद्धिकरण पर जो है फोकस किया गया है। और यहीं पर जो है जो संस्कार हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। इन संस्कारों के माध्यम से जो है प्योरिटी जो है प्राप्त की जा सकती है, राइट। सो थ्रू दीज संस्कारास, राइट, वन कैन अटेन प्योरिटी, राइट। और इन प्योरिटी के माध्यम से ही, राइट, इस प्योरिटी के माध्यम से ही जो सोल है वो हमारी बॉडी में रहने के योग्य हो जाती है, राइट। अकॉर्डिंग टू मनु, राइट, according to Mani, self study, fasting, home, offering to the gods, right, sages, yagyas, childbirth, isya, and by rituals of the Panch Mahayagyas, this body becomes Brahmi, right, becomes worthy of attainment of Brahma, or we can say that moksha, right। तो इंडियन जो कल्चर है या हमारा जो कल्चर है उसमें मोक्ष को या साल्वेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। और जो मोक्ष है या साल्वेशन है वो तभी मिल सकता है जब हमारी बॉडी उस एवल हो, राइट। तो हमारी बॉडी जब ब्राह्मी होगी देन वी वुड बी वर्दी ऑफ अटेनमेंट ऑफ ब्रह्मा और मोक्षा, राइट। और इसके लिए ये जो संस्कारास हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 इज जो संस्कारा है इनका ये भी उद्देश्य है कि वन कैन गेट हेवन और साल्वेशन, राइट। सीधी सी बात है, इट हैज़ टू फोल्ड मीनिंग। अगर आप देखेंगे तो आफ्टर डेथ वन कैन गेट हेवन इफ वन हैज़ डन गुड डीड, अगर अच्छे कर्म होंगे तो उसको स्वर्ग मिलेगा, एंड इफ उसके वेड डीड होंगे तो सीधी सी बात है उसको नर्क मिलेगा। साथ ही साथ उसके ज़्यादा ही अच्छे कार्य होंगे तो उसको मोक्ष या साल्वेशन भी मिल जाएगा। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इफ़ यू फॉलो द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं, सो डेफिनेटली आपको दुनिया के सभी लोग याद रखेंगे, राइट। और दिस मे बी हेवन फॉर योरसेल्फ। क्लियर। फिर नेक्स्ट इज डेवलपिंग मोरल क्वालिटीज। क्लियर। सी, जो संस्कार है, राइट, संस्कारास प्रोवाइड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। और इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को इफ वी फॉलो देन डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी जो जितनी भी मोरल क्वालिटीज हैं वो हम इन संस्कारों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। If we understand the objective of sanskaras, then definitely we can attain the moral qualities. For an example, we can have mercy, forgiveness, right, ansuya, socha, sama, right, proper behavior, calmness, right, and एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम जो है जो हमारे पास है जो मोरल क्वालिटीज जो है इंप्रूव हो सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हियर प्रोटेक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इनऑस्पिशियस फोर्सेस, राइट। सी, इन एंशिएंट टाइम में सुपर ह्यूमन फोर्सेस को या भूत प्रेत को जो है माना जाता था, राइट, या इवल सोल को जो है माना जाता था, राइट। एंड इट इज आल्सो एक्सेप्टेड इन आवर सोसाइटी इन एंशिएंट टाइम दैट ये जो सुपर ह्यूमन फोर्सेस हैं या इवल सोल हैं ये किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म कर सकती हैं या किसी इंडिविजुअल को या इंडिविजुअल के लिए नेगेटिव
इफेक्ट रख सकती हैं, इसीलिए ये संस्कार जो हैं ऑर्गेनाइज किए जाते थे, या इन संस्कारास के माध्यम से जो सुपर ह्यूमन फोर्सेस का बैड इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जाता है, या उसके हार्मफुल और इनऑस्पिशियस जो इफेक्ट हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ spirituality. See, in our Indian society, spiritualism has a prominent place, right? और spiritualism जो है उसके लिए बॉडी का प्योर होना बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ जो मेंटली, राइट, मेंटली और फिजिकली हमारी बॉडी जो है सात्विक होनी चाहिए, और उसके लिए जो संस्कारास हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। और थ्रू दीज संस्कारास, राइट, जो स्पिरिचुअलिटी है, राइट, उसके लिए एक मिडिल ग्राउंड जो है तैयार हो जाता है, और इसी मिडिल ग्राउंड के माध्यम से जो स्पिरिचुअलिटी है कैन बी अचीव्ड इजीली। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ आत्म तत्व, राइट। Why rituals? The physical activities become imbued with spirituality, right? And the aim of the sanskaras was to attainment of higher qualities. तो इससे हम higher qualities को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। जो लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको रिलीजियस एक्टिविटीज़ के माध्यम से जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे बॉडी में या वी अटेन द हायर क्वालिटीज़ और द हायर मोरल क्वालिटीज़, एंड थ्रू दीज हायर मोरल क्वालिटीज हमें जो है आत्म तत्व की जो है प्राप्ति होती है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो संस्कार हैं, संस्कारास जो हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के किस लाइफ स्टेज में या ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट शुड बी डन, राइट। इसकी जो पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है दिस इज प्रोवाइडेड बाय द संस्कारास, राइट। तो हमें लाइफ स्टाइल को किस तरीके का हमारा लाइफ स्टाइल होने चाहिए, कब क्या किया जाना चाहिए, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द संस्कारास, राइट। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर। देखिए ये जो संस्कारास है इनको डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में जो है परफॉर्म किया जाता है, और यदि सोसाइटी के सभी मेंबर जो है संस्कारास को परफॉर्म करते हैं सो डेफिनेटली उससे सोसाइटी में, राइट, एक सोशल ऑर्डर क्या होगा, एक सोशल ऑर्डर क्या होगा, क्रिएट होगा, और उस सोशल ऑर्डर से ही जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं वो भी इम्प्रूव होंगी, तो सोसाइटी का वेलफेयर भी होगा, सोसाइटी भी इम्प्रूव होगी, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट हैज इंपॉर्टेंस, राइट। सो थ्रू दीज संस्कारास जो है ह्यूमन डेवलप को जो है फोकस किया जाता है, राइट। जो जितने भी संस्कारास होते हैं, राइट, प्रायर टू बर्थ से लेकर डेथ तक, वो एक्चुअली में ह्यूमन के लिए जो है गाइडिंग क्या होते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट। और उन गाइडिंग प्रिंसिपल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो जितने भी डिफरेंट जो संस्कारास हैं उनके माध्यम से ह्यूमन डेवलपमेंट पर जो है फोकस किया जाता है, राइट। ओके, नाउ वी विल स्टडी 16 संस्कारास, राइट, और जिनको हिंदी में 16 संस्कार भी कहा जाता है। हियर 11 मार्कर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट। डिस्क्राइब द वेरियस संस्कारास, राइट। तो यदि ये 11 नंबर में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द वेरियस संस्कारास, देन यू कैन राइट, राइट, यू कैन राइट द 16 संस्कारास, राइट, और उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जो है डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। या फिर 5 नंबर में जो है पूछा जा सकता है, राइट, कि डिस्क्राइब द संस्कारास विच आर रिलेटेड टू प्रायर टू बर्थ, राइट। तो प्रायर टू बर्थ में जो संस्कारास हैं वो ये संस्कारास आते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि विच संस्कारास आर रिलेटेड टू चाइल्डहुड, या विच संस्कारास आर रिलेटेड टू, राइट, एडल्टहुड। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन भी जो है पूछा जा सकता है। या हो सकता है कि किसी एक संस्कारास पर आपको जो है
नोट भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ से 11 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर क्वेश्चन एंड 3 मार्कर जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, राइट। देखिए, संस्कारास जब भी आप पढ़ रहे हैं, अगर हम देखें तो संस्कारा जो संस्कार हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, इसीलिए प्रायर टू बर्थ से लेकर डेथ तक जो है लाइफ में पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कई रिलीजियस एक्टिविटीज़ के माध्यम से इन संस्कारास को जो है परफॉर्म किया जाता है। और हमारे जो है 16 संस्कारास हैव बीन प्रोमिनेंट, इनको ही इंपॉर्टेंट माना गया है। तो जो 16 संस्कार हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये जो 16 संस्कार हैं इनको हम कई भागों में सेग्रीगेट कर सकते हैं, राइट। तो इन 16 संस्कार में से कुछ संस्कार ऐसे हैं जो कि प्रायर टू बर्थ जो है परफॉर्म किए जाते हैं। तो संस्कारास विच आर परफॉर्म्ड प्रायर टू बर्थ, उसमें से फर्स्ट इज गर्भधारणा, सेकेंड पुंसवंसा एंड सीमांतोनयन, राइट। तो सीमांतोनयन इज थर्ड। देन संस्कारास विच आर परफॉर्म्ड रिलेटेड टू इन्फेंसी, राइट। फोर्थ इज जात करना, फर्स्ट इज गर्भधारणा, देन पुंसवंसा, सीमांतोनयन, जात करना, राइट, नाम करना, फिर निष्कर्मणा, राइट, और निष्कर्मण, फिर अन्न प्रसारण, चूड़ाकरण एंड कर्णवेदा। आफ्टर दैट संस्कारास विच आर रिलेटेड टू चाइल्डहुड, उसमें विद्यारंभ हो जाएगा, राइट, उपनयन हो जाएगा, फिर वेदारंभ हो जाएगा, केशांत हो जाएगा और समावर्तन हो जाएगा। देन संस्कारास विच आर रिलेटेड टू एडल्टहुड, उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। और संस्कारास और संस्कार विच इज रिलेटेड टू पोस्टमसली, उसमें क्या हो जाएगा, अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगा। तो नाउ जो संस्कार हैं हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे और संस्कार जितने भी पढ़ेंगे उसमें हमको वी हैव टू रिमेंबर 3 to 4 फैक्ट्स, राइट। किसी भी संस्कार, फॉर एन एग्जाम्पल पुंसवंसा, तो ये कब परफॉर्म किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी मेथड क्या है। These 3 points you must need to you must remember, राइट। तो ये जो 3 मेथड्स हैं ये हम यहाँ पर जो है ये 3 फैक्ट्स हैं वो हर एक संस्कार से रिलेटेड को समझेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, गर्भधारण हो जाएगा, राइट, गर्भधारण हो जाएगा। अब गर्भधारण के बारे में अगर हम देखें, सो गर्भधारण इज द फर्स्ट सैक्रामेंट ऑफ द लाइफ, क्लियर। गर्भधारण इज द फर्स्ट संस्कार ऑफ लाइफ। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में गृहस्थ जीवन को बेस्ट जीवन माना गया है, क्योंकि जो गृहस्थ जीवन है उस गृहस्थ जीवन में आप आपकी सेंसेस के माध्यम से मटेरियल लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं, साथ ही साथ आप आपकी जो जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, राइट, ड्यूटीज़ को जो है फुलफिल कर सकते हैं। और हमारी सोसाइटीज़ में जो है 5 ऋण माने गए हैं और उन ऋणों को दूर करने के लिए या टू फुलफिलमेंट ऑफ 5 ऋणास, राइट, गृहस्थ जो जीवन है वो इंपॉर्टेंट होता है। और इन 5 ऋणों में से जो पितृ ऋण है, राइट, पितृ ऋण, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ पितृ ऋण जो गर्भधारण संस्कार है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल मिलाकर यदि कोई व्यक्ति मैरिड है तो मैरिड व्यक्तियों को चाइल्ड जो है प्रोड्यूस करना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर मैरिड है और वह चाइल्ड को प्रोड्यूस करता है तो वह पितृ ऋण से क्या होता है, पितृ ऋण को जो है फुलफिल कर लेता है, राइट। तो यहाँ पर 2 जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो अगर हम हमारे जो अकॉर्डिंग टू अगर सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो सोशल लाइफ के अनुसार जो है गर्भधारण इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गर्भधारण, राइट, और कंसेप्शन। और इसके माध्यम से जो पितृ ऋण है वी कैन फुलफिल दिस पितृ ऋण, राइट। दूसरी चीज वी कैन अटेंड द गृहस्थ लाइफ थ्रू दिस संस्कार। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है
वो ऑब्जेक्टिव यही है कि गर्भधारण, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गर्भधारण, राइट। इन मॉडर्न टाइम्स व्हेन पीपल गॉट मैरिड दे गो टू डॉक्टर, राइट, एंड दे टेल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर चिल्ड्रन, प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन। तो मॉडर्न टाइम में भी लोग डॉक्टर को विजिट करते हैं और वो चाइल्ड को प्लान करते हैं, फिर डॉक्टर उनको पूरी की पूरी बातें बताता है कि इफ यू आर प्लानिंग द चाइल्ड देन ऑन पर्टिकुलर ऑफ टाइम यू शुड डू दिस दिस दिस, एंड दिस हैज बीन मेंशन्ड इन गर्भधारणा, राइट। सो वी विल डिस्कस हियर वन बाय वन। सो गर्भधारण इज द फर्स्ट गर्भधारण इज द फर्स्ट संस्कार ऑफ लाइफ, राइट। और जो ये रिचुअल है, राइट, ये रिचुअल जो है लेटर वैदिक पीरियड से क्या है, प्रारंभ हो चुका है, राइट। और ये जो संस्कार है, दिस संस्कार मेक्स इट क्लियर दैट गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज आल्सो रिलीजियस ड्यूटी, राइट। सो देयर इज नो सेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन इट, राइट। सो यदि चाइल्ड को बर्थ दिया जाता है, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज आल्सो अ रिलीजियस ड्यूटी है। एक तो इससे पितृ ऋणा जो है फिलफिल हो जाता है, दूसरी चीज इससे सोसाइटी भी क्या होती है, बैलेंस होती है, या सोसाइटी भी क्या होती है, मेंटेन होती है। इसीलिए इसमें या इस संस्कार में गर्भधारण को जो है इसके इंपॉर्टेंस को बताया गया है, राइट। इसके साथ ही गर्भधारण को सेक्रेड एंड ऑब्लिगेटरी सैक्रामेंट जो है या ऑब्लिगेटरी संस्कार जो है माना गया है। और ये भी माना गया है कि मैरिड मैन एंड मैरिड वुमेन, राइट, उनको चाइल्ड जरूर से जरूर प्रोड्यूस करना चाहिए। क्लियर। सेकेंड इज पुंसवंसा, राइट। सो पुंसवंसा और वी कैन से दैट fetus protection. See, if the conception is clear, right? So ये जो संस्कार है ये कब किया जाता है? So in the 3rd month after the confirmation of pregnancy, in the 3rd month पुंसवंसा संस्कार is performed, right? और ये क्यों किया जाता है? तो इसका एक ऑब्जेक्टिव तो क्या है, right? This संस्कारा is performed to wish for a son, राइट। हमारी जो सोसाइटी है उसमें सन को प्रेफर किया जाता है, तो दिस संस्कार इज परफॉर्म्ड टू विश फॉर अ सन। लेकिन इसका एक दूसरा ऑब्जेक्टिव भी है। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि दिस संस्कार इज परफॉर्म्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकैरेज और इट रिमूव्स ऑल काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स। तो प्रेगनेंसी में मिसकैरेज ना हो, इसके साथ ही प्रेगनेंसी में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर हो जाएं, इसके लिए जो पुंसवंसा संस्कार है ये परफॉर्म किया जाता है, राइट। पुंसवंसा संस्कार इज परफॉर्म्ड इन द 3rd मंथ आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज परफॉर्म्ड इन द 3rd मंथ, राइट। और इसमें क्या किया जाता है, राइट। इसमें जो मून है, राइट, पुष्य नक्षत्र में when the moon is in पुष्य नक्षत्र at that time जो है ये किया जाता है, राइट। तो इसके पूरा का पूरा यहां पर भी बताया गया। तो जो पुंसवंसा संस्कार है इट इज परफॉर्म when the moon is in पुष्य नक्षत्र, राइट। और जब मून पुष्य नक्षत्र में होता है और अगर 3 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है तब ये जो संस्कार है ये परफॉर्म किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मिसकैरेज को रोकना और प्रेगनेंसी में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको दूर करना। 3rd हो जाएगा सीमांतोनयन, राइट। सीमांतोनयन मीन्स सेटिस्फाइंग विशेस ऑफ द प्रेग्नेंट मदर। सीमांतोनयन मीन्स होता है गुड फ्यूचर वुड बी अकम्प्लिश्ड, राइट। अब सबसे पहली चीज ये सीमांतोनयन संस्कार कब परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस पीरियड क्या है, राइट, या कब किया जाता है इसका परफॉर्मेंस? सो सीमांतोनयन संस्कार इज परफॉर्म्ड फ्रॉम द 4th to 8th मंथ आफ्टर द कंसेप्शन, राइट। तो 4 मंथ टू 8th मंथ के बीच में सीमांतोनयन संस्कार इज परफॉर्म्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखिए कुछ जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में ऑब्स्टिकल होती हैं या फिर प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकती हैं, तो
प्रेगनेंसी को एबॉर्ट होने से बचाने के लिए और नेगेटिव फोर्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो सीमांतोन्नयन संस्कार है इट इज परफॉर्म्ड। इसके साथ ही जो प्रॉस्पेरिटी ऑफ प्रेग्नेंट वुमन है, राइट, उसके लिए भी, और जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी लाइफ, लॉन्ग लाइफ के लिए, और फीटस के डेवलपमेंट के लिए, फीटस की लॉन्ग लाइफ के लिए भी जो है ये संस्कार जो है परफॉर्म किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मदर है, राइट, उनको ये जानकारी देना कि वो गीता एवं जो रिलीजियस टेक्स्ट है या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़ें, और उसके साथ ही जो स्कैरी या जो नेगेटिव फिल्म्स हैं उनको अवॉइड करें, राइट। और ये भी साइंटिफिकली क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, राइट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट मदर है वो जिस भी तरीके की किताबें पढ़ती है और जो भी वो मूवीज देखती हैं प्रेग्नेंट वुमेन, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बच्चे पर पड़ता है। तो जिस तरीके के विचारों, जिस तरीके के विचार जो प्रेग्नेंट मदर है उनमें होंगे, उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो फीटस पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी है ये ऑलरेडी हमारे संस्कार में है, सीमांतोन्नयन संस्कार में। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको गीता एवं जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो पढ़ने के लिए प्रेरित करना, और साथ ही साथ स्कैरी और नेगेटिव मूवीज देखने के लिए या अवॉइड करने के लिए अवेयर करना। फोर्थ इज जात कर्मा, और क्या हो जाएगा, बर्थ रिचुअल हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो वी हैव स्टडीड द थ्री संस्कारास प्रायर टू बर्थ। तो जो गर्भधारण है ये भी प्रायर टू बर्थ परफॉर्म किया जाता है, देन पुंसवंशा प्रायर टू बर्थ, देन सीमांतोन्नयन प्रायर टू बर्थ। अब उसके बाद में हो जाएगा जात कर्मा, राइट, और जिसको क्या कहा जाता है, बर्थ रिचुअल किया जाता है। सबसे पहली चीज तो ये कब किया जाता है, सो जात कर्मा संस्कार इज परफॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, राइट। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का फादर आफ्टर बाथिंग गोज टू सन, उसको छूता है और स्मेल्स। सो आफ्टर taking bath, father goes to son, he touches his son and he smells his son or daughter, right। और उस समय पर ही जो है उसके बच्चे के लिए, चाइल्ड के लॉन्ग बर्थ के लिए या लॉन्ग लाइफ के लिए उसके कान में कुछ मंत्र को क्या करता है, चांट करता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, जात कर्म कहा जाता है, right। So on this occasion he chants, or we can say that blessings in the ear of this child, right। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस जात कर्म संस्कार के माध्यम से जो फादर है वो अपने बच्चे के हेल्थ को एक तरीके से चेक करता है। फादर टचेस एंड स्मेल्स हिज सन, राइट। आल्सो उसको हनी एवं जो घी है वो फादर के द्वारा दिया जाता है, और बच्चे के लॉन्ग लाइफ के लिए, राइट, लॉन्ग लाइफ के लिए उसके कान में जो है ब्लेसिंग्स जो है वो फादर के द्वारा बोली जाती हैं। फिफ्थ हो जाएगा यहाँ पर नाम करना, या क्या हो जाएगा, नेम गिविंग क्या हो जाएगा, सेरेमनी हो जाएगा। ये तो प्रेजेंट डे में भी होता है, राइट। तो जो नामकरण संस्कार है दिस इज परफॉर्म्ड ऑन द 10th और 12th डे आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो बच्चे के बर्थ के 10th और 12th डे पर जो है नामकरण संस्कार होता है, राइट। और इस दिन जो बच्चा है उसको नहलाया जाता है, उसको प्योर जो क्लॉथ हैं वो पहनाए जाते हैं, फिर जो डिटीज होती हैं उनकी पूजा की जाती है, और पूजा करने के पश्चात जो है बच्चे का नामकरण किया जाता है, और उसके साथ ही उसकी लंबी आयु के लिए भी जो है कामना की जाती है। और जो नाम होता है वो पब्लिक बिहेवियर को ही क्या करता है, राइट। अकॉर्डिंग टू बृहस्पति नेम इज द मीन्स ऑफ क्या हो जाएगा, पब्लिक बिहेवियर हो जाएगा। देन 6th इज, राइट, निष्क्रमण, राइट, टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर, राइट। सो 6th इज निष्क्रमण विच मीन्स द टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर। सी, जब बच्चे का बर्थ होता है, चाइल्ड का बर्थ होता है, तो चाइल्ड और मदर को, राइट,
चाइल्ड और मदर को घर के अंदर रखा जाता है ताकि किसी भी संक्रमण से वो अफेक्टेड ना हो सके, साथ ही साथ उनको कोई भी बीमारी ना हो सके या उनका हेल्थ अच्छा हो सके। लेकिन इस संस्कार के माध्यम से, राइट, थ्रू निष्क्रमण संस्कार, जो चाइल्ड एंड मदर है उनको घर से बाहर निकाला जाता है, या सॉरी बाहर लाया जाता है। सो निष्क्रमण मीन्स गोइंग आउट, राइट। और इन दिस सेरेमनी, राइट, इन दिस सेरेमनी में जो बच्चा होता है और उसकी मदर होता है, राइट, उनको घर के बाहर लाया जाता है, राइट। सो सिंपली वी कैन से दैट कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म से 40 दिन तक, राइट, टिल 14 डेज आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, टिल 14 डेज जो मदर है, मदर आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउस। ताकि इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बच्चे हैं और जो मदर है, राइट, मदर एंड चाइल्ड का हेल्थ अच्छा रहे, कोई भी संक्रमण उनको ना लग सके, साथ ही साथ वो उनकी जो बॉडी है, बॉडी भी क्या हो जाए, हेल्थी हो जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद में थोड़ी वीकनेस आ जाती है, उनको न्यूट्रियस फूड जो है प्रोवाइड कराया जाता है। फिर जैसे ही 40 दिन हो जाते हैं तो आफ्टर 14 डेज जो मदर है और चाइल्ड है उनका निष्क्रमण होता है, राइट, और उनको घर के बाहर या एक तरीके से अपने घर का जो रूम होता है उससे बाहर लाया जाता है, राइट। और इस दिन जो है यज्ञ किए जाते हैं, साथ ही साथ जो वैदिक रिचुअल्स या रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म की जाती है। साथ ही साथ बच्चे को सूर्य दर्शन, राइट, सूर्य दर्शन कराया जाता है और साथ ही साथ उनको टेम्पल भी ले जाया जाता है। नेक्स्ट 7th इज अन्नप्रसान। अन्नप्रसान का मतलब होता है गिविंग द चाइल्ड सॉलिड फूड। देखिए, चाइल्ड की ग्रोथ के लिए उसको न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है और न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति के लिए सॉलिड फूड दिया जाना बहुत ही जरूरी होता है, राइट। तो ये जो संस्कार है ये परफॉर्म किया जाता है और इस संस्कार के माध्यम से ही बच्चे को सॉलिड फूड पहली बार दिया जाता है, राइट। फीडिंग अ बेबी सॉलिड फूड फॉर द फर्स्ट टाइम इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन हिज लाइफ। और थ्रू अन्नप्रसान संस्कार के माध्यम से ही बच्चे को सॉलिड फूड जो है पहली बार दिया जाता है, राइट। और अन्नप्रसान मीन्स दैट फूड इज नीडेड अलोंग विद द मदर्स मिल्क और फॉर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए, राइट, ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जो सॉलिड फूड है वो भी क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है, राइट। और इस अन्नप्रसान, राइट, जो अन्नप्रसान संस्कार होता है, ये संस्कार पहली चीज कब होता है, 6 मंथ आफ्टर होता है। तो आफ्टर 6 मंथ, राइट, आफ्टर 6 मंथ जो है बच्चे को पहली बार, राइट, मिल्क, घी, कर्ड और जो कुक्ड राइस है, तो कुक्ड राइस, कर्ड, घी और मिल्क से युक्त जो है सॉलिड फूड जो है पहली बार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, अन्नप्रसान संस्कार का ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं, इसीलिए एक सेरेमनी के तौर पर या संस्कार के तौर पर इसको परफॉर्म किया जाता है ताकि जो पेरेंट्स हैं वो अवेयर हो सके कि 6 महीने के बाद बच्चे को जो न्यूट्रिएंट फूड्स है वो प्रोवाइड कराया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, राइट, ताकि बच्चे का जो फिजिकल है और मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो सके। नेक्स्ट इज चूड़ाकरण, और क्या हो जाएगा, हेयर कटिंग सेरेमनी हो जाएगी या हेयर कटिंग संस्कार हो जाएगा, राइट। जो चूड़ाकरण सेरेमनी है या चूड़ाकरण संस्कार है, दिस आल्सो मीन्स मुंडन, राइट। तो जो हमारे पॉपुलर लैंग्वेज में होती है उस पॉपुलर लैंग्वेज में या जनरल लैंग्वेज में हम चूड़ाकरण को मुंडन के नाम से भी जानते हैं, राइट। और बच्चों का मुंडन इसीलिए कराया जाता है ताकि उनको, राइट, उनको ये लेसन दिया जा सके कि उनको क्लीननेस, बॉडी क्लीननेस के बारे में उनको जानकारी दी जा सके, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कहीं पर भी खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, राइट, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, राइट। हाइजेनिक क्या होता है, इनहाइजेनिक क्या होता है, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग। इसीलिए जो चूड़ाकरण या हेयर कटिंग जो है संस्कार जो है परफॉर्म किया जाता है। और ये जो
चूड़ाकरण या हेयर कटिंग संस्कार होता है, राइट। इस संस्कार के माध्यम से जो बच्चे के हेयर हैं वो पहली बार जो है काटे जाते हैं, राइट। सो द चाइल्ड्स हेयर इज कट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्लियर। और ये संस्कार कब किया जाता है? जब बच्चा कितना 3 साल का हो जाए, राइट, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर और एंड ऑफ द थर्ड ईयर। सो दिस संस्कार इज परफॉर्म्ड बिटवीन आइदर एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, या तो 1 साल के पूरे होने पर, या एंड ऑफ द थर्ड ईयर, या 3 साल के पूरे होने पर यह संस्कार परफॉर्म किया जाता है। और इस संस्कार में बच्चे के जो हेयर हैं वो कट किए जाते हैं, साथ ही साथ एक सिक्का को जो है छोड़ दिया जाता है। फिर उस बच्चे की जो जब सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है तो इसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चे को जो लेसन ऑफ क्लीननेस है वो प्रोवाइड कराना, क्योंकि बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसको अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, राइट। अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहिए, राइट, बॉडी क्लीन हो, राइट। इस वजह से ये जो है संस्कार किया जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कर्णवेदा या ईयर प्रीसिंग संस्कार हो जाएगा, राइट। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो कर्णवेदा संस्कार होता है, राइट, ये कब किया जाता है? सो दिस संस्कार इज परफॉर्म्ड इन द 5th ईयर ऑफ द बर्थ, राइट। कब? 5th ईयर ऑफ द बर्थ। तो जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तब ये कर्णवेदन या ईयर प्रेसिंग जो संस्कार है ये परफॉर्म किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, व्हेन चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 5th, तो उसकी सेंसेस जो हैं, सेंसेस उसकी डेवलप हो जाती हैं, राइट। देखना, सुनना, सूंघना, उसकी सेंसेस जो है डेवलप हो जाती हैं और उसकी सेंसेस में अच्छी ग्रोथ हो सके, राइट। इसके लिए ही जो है ये कर्णवेदा जो है, कर्णवेदा या ईयर प्रीसिंग जो संस्कार है इसको परफॉर्म किया जाता है, राइट। और इन दिस संस्कार ईयर ऑफ द चाइल्ड इज पियर्स्ड, राइट, उसके कान में जो है बाली बेधी जाती है। सो इन दिस संस्कार ईयर ऑफ द चाइल्ड इज पियर्स्ड एंड कॉइल इज पुट इन इट, क्लियर। और जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तब ये संस्कार किया जाता है, राइट। और ये संस्कार इसीलिए किया जाता है क्योंकि सीधी सी बात है कि व्हेन चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 5th और 6th, तो उसकी बॉडी के जो जितनी भी ऑर्गन्स होते हैं और उसकी जो सेंसेस होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। उन सेंसेस को और अधिक डेवलप करने के लिए और जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से वर्क कर सकें, इसके लिए ये संस्कार किया जाता है, या एक तरीके से एक जानकारी जो है प्रोवाइड कराई जा सकती है। सिंबॉलिकली हम कह सकते हैं कि उसको जो हियरिंग या जो लिसनिंग है, राइट, ये भी हम मान सकते हैं कि 5 से 6 साल बाद बच्चे को जो अपने फैमिली के मेंबर हैं उनकी सलाह माननी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि उसकी जो लिसनिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। और अगर उसकी लिसनिंग स्किल अच्छी होगी तो वह एजुकेशन भी अच्छे से जो है ले पाएगा। तो बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो सके, उसकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव हो सके, इसीलिए ये जो परफॉर्मेंस जो है किया जाता है, राइट। तो इट हैज़ 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज ये है कि बॉडी ऑर्गन्स, जो चाइल्ड के बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो सेंसेस हैं, उनको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, राइट। साथ ही साथ उसकी जो लिसनिंग स्किल है उसको भी इम्प्रूव करना ताकि वो अच्छे से एजुकेशन को एक्वायर कर सके, राइट। सो वी हैव स्टडीड द 9 संस्कारास। जो रेस्ट ऑफ द संस्कारास हैं वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।